morning, students. Welcome to our accountancy class of 1st July 2020. I just asked Bhumi to send me some questions on which we can begin our discussion of today. So she sent a very nice question, but it is not a question, it is an illustration in D.K. Goyal book. So thanks to Bhumi for asking such a nice question. So today we will beginning the question asked by him. First of all, we learn what is the question, we understand the question, and then we solve it. Okay, this is illustration number 32. Okay, now it's a complete question, complete in itself in all respect. So please understand it, and it will be definitely give you some power or some backing to solve the questions of admission as well as retirement as well as death as well as the question of journal entry, evaluation account, and so on. So it's a complete question. Okay, we start now. A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as at 1st April 2018 was as follows. Now you are seeing the balance sheet. Now come to liability side. First of all, sundry creditors, EPF, Employees Provident Fund, is the fund which is related to employees, not partners. Again, I am reiterating it that it is the money belongs to partner, not to the partner. This is the money belongs to employees, not to the partner. Reserve fund, this amount belongs to partner directly, because this is undistributed profit and profit is related to partners. And workman compensation reserve, if there is no claim received in this aspect, this also belongs to partners. All these are old partners old ratio. Remember this old partner old ratio, this means reserve fund I am saying, not EPF. Okay, and rest is ABC's capital. Now come to asset side. Cash, sundry debtors, stock, furniture, patents, buildings. This one is goodwill. This is the old goodwill which is present in बैलेंस शीट. सो वी हैव टू राइट ऑफ, यानी इसको हमको ख़त्म करना होगा, समाप्त करना होगा, और इसके लिए भी वही रेशियो होता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. आपको जैसा कि मालूम है, मैं बार बार दोहराता आया हूँ, गेनिंग रेशियो जो होता है वो नया गुडविल के लिए होता है. जो गुडविल जो है वैल्यू होगा उसके लिए होता है. पुराना गुडविल के लिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. ये वाला इसको ओल्ड गुडविल है, ये पुराना गुडविल है. ओके, देन वी मूव ऑन. सी रिटायर कर रहा है. अब यहाँ देखिए, गुडविल इज टू बी वैल्यूड, ये जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है. तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, और लास्ट 4 ईयर्स का दिया हुआ है 15, 16, 17, 18. यहाँ पे देखिए लॉस है. तो आप लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज निकाल लेंगे, और एवरेज निकालने के बाद आप जो भी बोलता है, देखिए 2 ईयर्स परचेज है, उसका 2 टाइम्स कर दीजिएगा तो वो गुडविल आ जाएगा. गुडविल में फिर सी का क्या शेयर होगा, उसका हिस्सा उसको हम निकाल के दे देंगे, और वो शेयर देगा ए और बी उसको किस रेशियो में देता है, गेनिंग रेशियो. ये पूरा कहानी है गुडविल का. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड 5%, and stock is to be appreciated by 10%. This is one part of the question. Another one is this. Number 4 is patents are valueless, यानी पेटेंट्स का कोई मूल्य नहीं रहा है. बिल्डिंग्स बी एप्रिशिएटेड बाई 20%, बिल्डिंग्स को हमें 20% से बढ़ाना है. और सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है, ये वाला देखिए, ये नया है. सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2000 मोर देन द बुक वैल्यू, यानी कि जो बुक का वैल्यू है उससे ज़्यादा आपको देना है 2000. तो जैसे आप देख रहे हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर्स मान लो 14,000, आप उसको 2000 ज़्यादा दीजिएगा तो ये बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए इसको रिवैल्यूएशन में डेबिट करना पड़ेगा. अब क्वेश्चन देखिए क्या है, पास जर्नल एंट्रीज. आपको जर्नल एंट्री पास करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है. इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ ये कंप्लीट क्वेश्चन है. तो यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करना है शुरू में. ओके, तो हमें जर्नल एंट्री से शुरुआत करनी होगी. तो चलिए
सबसे पहले जो है हमें जो है वो जर्नल एंट्री जिसका सॉल्यूशन है, आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में आप देखिए सबसे पहले जो है रिजर्व फंड को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देना है। ओके एंड जस्ट वेट, आप देखिए ओल्ड रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो 5:3:2 और न्यू रेशियो हो जाएगा 5:3। याद रखिएगा यही गेनिंग रेशियो भी होगा और यही NPSR भी होगा। ओके यानी ये दोनों 5:3 ये हो जाएगा नया रेशियो और गेनिंग रेशियो, और 5:3:2 ये जो है हमारा ये आपका होगा आपको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हमें जो भी चीज़ बांटना है वो बांट देंगे। जैसे ये और ये दोनों जो हमें बांटना होगा, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन का भी कोई भी लायबिलिटी नहीं दिखा रहा है एडजस्टमेंट में कि उसका कोई क्लेम है, तो हमें ये दोनों को सबसे पहले बांटना होगा। और इसको ये तीन जो चीज़ आपको दिख रहा है रिजर्व फंड, WCR एंड गुडविल, ये तीनों ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटेगा। ये दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे ये और ये, जबकि ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। तो लेट्स सी, ओके देखिए 5:3:2 यहाँ पे भी है रेशियो, WCR 5:3:2 बट गया। और गुडविल के लिए जो ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल पहले ही बांट देना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है शायद, यहाँ देखिए ओल्ड गुडविल ये आ गया ABC, ये तीनों आ गया। ओल्ड गुडविल है हमारा 6000, ये भी 5:3:2। तो ये तीनों जर्नल एंट्री हम लोग पहले कर लेंगे। ओल्ड वाला जो भी चीज़ है वो पहले कर लीजिए, यानी ये और नीचे आप ये गुडविल वाला। इतना करने के बाद अब आपको सीधे करना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मैं इसको आपको मूव कर रहा हूँ, एक एक करके जो है हम बताते जाएंगे। वर्किंग नोट्स में आते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ 4 साल में एक तरह का लॉस जो था उसको हम लोग माइनस से शो कर दिए हैं, क्योंकि लॉस माइनस ही होता है। 4 साल का आप देखिए, चारों साल का प्रॉफिट को ऐड कर दिया गया है, दिस प्लस दिस, ये वाला माइनस में आएगा और ये दिस, इतना करके आ रहा है 40,000 डिवाइडेड बाई 4, देन आएगा 10,000 20,000, ये हो गया वैल्यू ऑफ गुडविल। अब इसमें जो है 5:3:2 है और C का हिस्सा होगा 2/10, यानी 2/10 अगर आप इसका निकालिएगा तो ये आएगा 4,000। तो ये 4,000 आपको किसको C को मिलेगा, यानी किसी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा और A और B दोनों देगा। तो A और B देगा किस रेशियो में देगा, तो 5:3। अगर 5:3 में इसको आप बांटिएगा तो 2500 और 1500 आएगा। तो जर्नल एंट्री हो गया, इस कैप अकाउंट डेबिटेड 2500, बीस कैप अकाउंट डेबिटेड 1500 टू सीज कैप अकाउंट 4000। ओके तो वो देख लीजिएगा। हाँ, और यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री में इसको हम लोग देखेंगे, ज़रूर होगा ये, यहाँ पे नहीं है, इससे बढ़िया ये देखिए, ये वाला जो जर्नल एंट्री है ये गुडविल का है, नया गुडविल का है। तो वो 3 जर्नल एंट्री के बाद दिस इज़ 4th नंबर, ये नया जर्नल एंट्री है। और इसके बाद मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जर्नल एंट्री करना आसान होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट चलिए हम लोग बनाते हैं। ये जो स्टॉक बढ़ गया उसका वैल्यू है, बिल्डिंग जो बढ़ गया उसका वैल्यू है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये डेट आप क्रिएट कर ही दिए। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस लिखा हुआ, यानी पेटेंट्स का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए पेटेंट्स का फुल वैल्यू यानी 4000 जो है पेटेंट्स का जो बैलेंस शीट का जो वैल्यू है वो लिख दीजिए, क्योंकि इसका कोई मूल्य ही नहीं है, यानी नया बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे ही नहीं, वो कर दीजिए। और सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमको 2000 रुपये लॉस होने वाला है, क्योंकि 2000 रुपये ज़्यादा देना है। तो आप जो है इसको और इसको लिख दीजिए, फिर इसको और इसको लिखिए। यू विल फाइंड दैट दिस वन इज़ मोर 16,000। इसको मैं हमेशा लिखा तो ये ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का टोटल किया, फिर इसको हम लोग यहाँ पे लिखें और इस 16,000 में से ये तीनों आइटम को हम लोग घटा देंगे। घटाने के बाद हमारे पास दिया हुआ 9,600 आएगा, और ये 9,600 जो है 5:3:2 में आप डिवाइड कर दीजिए। दिस इज़ 5:3:2। तो यहाँ इतना करने के बाद अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्री है वो बनाइए। तो यहाँ रिवैल्यूएशन से जर्नल एंट्री स्टार्ट हुआ है। देखिए ये तीनों चीज़ डेबिट का एक साथ कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू दिस। फिर ये दोनों से क्रेडिट हुआ था, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट बाय दिस, यानी स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया। और उसके बाद ये है गेन ऑन जो भी हुआ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन उसका है।
तो ये डायरेक्ट आप ये तीनों जर्नल एंट्री उससे रिलेटेड है, इससे आप इससे लिख सकते हैं। तो इस तरह से इतना करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम लोग को बनाना है कैपिटल अकाउंट। चलिए हम लोग कैपिटल अकाउंट देखते हैं। ये हो गया इसका ओपनिंग बैलेंस, वो लिखा हुआ है। फिर रिजर्व फंड जो बांटे थे वो है, फिर WCR जो बांटे वो है, फिर रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो है ये। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, हाँ इसको छोड़ना नहीं। ये जो है दिया है सी को 2500, ए ने दिया है और बी ने दिया है 1500। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट ए एंड बी भी कर सकते हैं। ए एंड बी करके 4000 दोनों का दिखा सकते हैं, अथवा अलग अलग भी आप दिखा सकते हैं। ए ने 2500 दिया और बी ने 1500 दिया। अब यही 2500 और 1500 इसके अकाउंट में यहाँ पे 2500 ये 1500 शो कर रहा है सी के कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह का डायरेक्ट हो गया। ये ओल्ड गुडविल जो आप करने, ओल्ड गुडविल को हमने ओल्ड रेशियो में जो बांटा था वो है, और शायद कुछ नहीं किया गया इसका, सीधा इसको बैलेंसिंग किया गया है। सबसे पहले हम लोग सी को बैलेंस करेंगे। तो आप पाइए ये ज़्यादा है, इसको आप यहाँ लिखिए। टोटल करने के बाद इसमें से इसको आप घटा दीजिए, तो 31,320 आ रहा है। ये आप सीधे इसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और बाकी ये जैसे बैलेंस कैरी डाउन होता है वैसे ही किया हुआ है। तो ओके, तो इसका एक जर्नल एंट्री और बनेगा हमारा। आप देख रहे हैं कि सी का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है टू सीज लोन अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री हमारा बन जाएगा। यही हमारा लास्ट जर्नल एंट्री था। ये डी आ गया, सॉरी। नहीं, ये वाला देखिए, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। तो ये आप देख लीजिए, ये सारा एक बार फिर से देखिए सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से सबको कुछ समझ में आ गया होगा। ये रिजर्व फंड का ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो तीनों आइटम एक साथ डेबिट हुआ तो उसको डेबिट किया गया है। ये दोनों अकाउंट एक साथ क्रेडिट किया गया है। इसके बाद आप देखिए रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट निकला है उसको हम लोग 5:3:2 जो है उस एग्जिस्टिंग रेशियो में बांट दिए थे। ये वाला जो ओल्ड गुडविल है ये भी 5:3:2 में बटा है, ओल्ड गुडविल। इसका जर्नल एंट्री है। उसके बाद आप आइए इस तरफ, ये हमारा जो है नया गुडविल जो है उसका वैल्यूएशन जो है 5:3 जो गेनिंग रेशियो है वो हुआ है। एंड देन आपको फाइनली सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट। फिर ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन आपका बना है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट का सारा अकाउंट एक्सप्लेन कर दिया गया। उसके बाद आप आइए, कैश में नो चेंज है। सन्डी डेटर्स में नया में 8 में 400 घटा के ये दिखा है 7,600। स्टॉक का जो बढ़ा हुआ वैल्यू है और बिल्डिंग का बढ़ा हुआ वैल्यू है। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है। ओके, और इसमें देखिए पेटेंट्स को लिखा ही नहीं गया है, क्योंकि पेटेंट्स इज़ वैल्यूलेस। मतलब पेटेंट्स और गुडविल, ओल्ड गुडविल जो है वो ख़त्म हो गया और पेटेंट्स जो है वैल्यूलेस, यानी पेटेंट्स को सारा के सारा हमने लॉस मान लिया, इसका वैल्यू 0 कर दिया। और इस तरफ देखिए सन्डी क्रेडिटर्स जो 10,000 से उसको बढ़ा के 12,000 दिखा रहे हैं, क्योंकि हमको उसमें दिखाना है। सी का कैपिटल अकाउंट नहीं दिखाएंगे क्योंकि सी रिटायर्ड हो चुका है, उसका लोन अब बच गया हमारे पास 31,320 रुपये उसको देना है। EPF का जो पैसा था वो जस का तस है। और कैपिटल ए और बी का जो बैलेंस है वो ये वाला है, ये वाला। तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस भी बन गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा बाय मैसेज और बाय कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच।